ई पर्सपेक्टिव बताऊँ ऐसा चल क्यों रहा है एक्चुअली। इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये काउंसिल्स वगैरह बन रहे हैं, व्हाट इज़ द रीजन दैट द काउंसिल वॉज मेट, दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। सो वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट कि 1950 का दौर था, डिकेड्स का, उस टाइम पर वर्ल्ड की सुपर पावर लाइक अमेरिका एंड यूएसएसआर, they want to their supremacy, okay, and dominance. So therefore they try to control and capturing the small states and new independent nations like India, Sri Lanka and Africa like Nigeria, Algeria, Tunisia, Libya, Chad, Niger et al. Because these are the approximately 25 new countries was independent during the 1950 decade. So they are poor and they were suffering from poverty. Therefore America and USSR, they want to capture the economy and they want to control over these countries, because if they took help of these nations, so they have to follow all the rule and regulations of Soviet Union, otherwise USA. So therefore why do we have to think why America was coming there and he said that I will help you, don't worry, and therefore he published Marshall Plan and he made an organization like NATO. Why? This is the cause, because these wants to like that to control over these nations, right? अब if USA help of European nations, states, so this is the compulsory thing that they have to follow the rules and regulation of America and they have to help of America. And therefore in the Cold War time period, all the nations of Europe, they were stand with USA, with America. That was the reason. That is smartness. Okay. Now done कर लिया आपने? Okay. What was the major reason about the Soviet Union and the America that what was their mindset for capturing the other countries for the monarchy or democracy? Okay, first of all we have to understand why do they want to capture at all. Simple reason, because there are two dominant country and we have to understand that after 1950 decade, it will be 20th century, all the people were aware about of monarchy and democracy. They know about of that how much suffering was faced by monarchy system. So therefore they do not want to accept monarchy, they want to democracy. Therefore all the countries supported democracy. And secondly, they want to capture because they have to got resources and they want to dominancy of each other. If you want to make many friends, it means you become more powerful. That is the simple reason. बच्चों आगे बढ़े अपन। आपने बोला तो सर के इंडिया के साथ ये सारे देश भी आज़ाद हुए थे। नहीं बेटा, ऐसा है, जो यूरोप में कुछ देश है ना, साथ का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन, आसपास में 1950 ऐसे 1945 से 55 के बीच में। तो इनको किसने गुलाम बनाया था? इनको यूरोप में ब्रिटेन, समझ रहे हो भाई, दबदबा था। हमें भी, श्रीलंका को भी, चाइना को भी, सबको। ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, अमेरिका को, ये भी उन्हीं का गुलाम था। 1776 में वो आज़ाद हुआ है ब्रिटेन से। ब्रिटेन समझ रहे हो ना, मैंने अभी एक दिन बताया था ना, इंग्लैंड, स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड और ईस्टर्न आयरलैंड, इन सब को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड छोटा सा बच्चा है, छोटा सा देश है, समझ रहे हो। जितनी इंग्लैंड की पॉपुलेशन है ना, इतने तो हमारे यहाँ, समझ रहे हो, बेरोजगार हैं भारत में। तो हमको ये समझना है बच्चों, आपका क्वेश्चन सही है। तो इनको गुलाम ब्रिटेन ने बनाया, एक बात। दूसरी बात, अब आप मान लो कोई देश अभी तो गुलाम है, अभी आज़ाद हुआ है, और फिर से उससे बोले नहीं हम जैसे कहेंगे तू वैसे चलेगा, क्यों चाहेगा वो चलना? वो भी तो चाह रहा है भैया अभी तो हम बच्चे हैं, फिर से दोबारा से गुलाम बना लो हमें। इसीलिए हम भी तो आज़ाद हुए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू समझदार थे, और फिर हमारे देश की जो पॉलिसी थी, या फिर हमारा देश था, वैसे भी दुनिया को आज लीड करने वाले देशों में, तो उस टाइम पर इतने कमज़ोर नहीं थे हम लोग, काफ़ी बड़ा देश था भारत। इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम गुटनिरपेक्ष बनाएंगे, अलग आंदोलन करेंगे,
अलग संगठन बनाएंगे और उसमें हमें किसी बड़े देश को नहीं चाहिए। हम उन देशों को शामिल करना चाह रहे हैं जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं और जो अपना विकास करना चाह रहे हैं। इसलिए 5 देशों ने मिलकर ये संगठन बनाया और जोसेफ ब्रंच टिटो थे, उन्होंने बोला भी था कि भाई जो भी नए देश हैं वो हमारे साथ आओ, अपन मिल करके अपना खुद का विकास करेंगे, हमें दूसरे से मतलब नहीं है, ना लड़ाई लड़नी। तो उनका पर्पस था। ठीक है, अभी मैंने बताया यूरोपीय संगठन के बारे में और ये यूरोपीय संगठन है। और एक बात और, अब आप बोले सर ये ओल्ड और न्यू क्या है? पुराने सदस्य ये रहे, कुछ बाद में कुछ लोगों को सपना आ जाए कि भैया गड़बड़ है, कहीं ना कहीं अपन भी जाके मिल जाएं, तो बोले सॉरी उस टाइम पर हम नहीं मिल पाए, प्लीज़ हमें भी जोड़ लो। ठीक है, जैसे कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, जैसे किसी ने कहा देखो भैया ये स्कीम है, आप हमारे साथ आना चाह रहे हो? बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सबको प्रॉफिट हुआ ना। बोले हो सच में अच्छी पॉलिसी है, बोले अब मेरा भी नाम लिख दो, लाइक दैट। ऐसे ही इन्होंने संगठन बनाया। देखो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी समझ रहे हो, ए रहा। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ आपको पता है? ए जर्मनी रहा और इधर क्या था? USSR। पहले विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने जर्मनी को पीटा, हराया, और उस टाइम पर एक सैनिक था हिटलर, जो ये सब देख रहा था। उसके मन में था कि बदला है और लेके रहेंगे, और ठान लिया तो ठान लिया। तो दूसरे विश्व युद्ध में ये भाई इसको कॉल करता है कि देखो सर, हम किसको पीटेंगे? पोलैंड को। ठीक है, और हम इसको पीट करके, इसको जीत के हम आपको गिफ्ट देंगे, लो सर संभालिए। तो बोला बहुत बढ़िया, थैंक यू। पर सोवियत संघ बोला पर ऐसा आप क्यों कर रहे हो भैया? आप किसी देश को पीट रहे हो, पीटने के बाद हमें दे रहे हो गिफ्ट, आप ही रख लो। बोले हमारे पास पैसा की कमी है, अनाज की कमी है, ग्रेन की, तो आप एक काम करो, फूड ग्रेन, खाद्यान्न पदार्थ, भोजन वगैरह हमारे लिए भेज दो। सोवियत संघ खुश हो गया, वाह बिना लड़े हमें देश मिल रहा है। इधर इन्होंने खाना या अनाज वगैरह भेजना शुरू किया। इधर इसके सैनिक आ गए सोवियत संघ के, और ये तो समझ गए ये पीट तो दिया, पोलैंड पर कब्जा तो कर लिया इसने। इधर इसके सैनिक आए, फिर जर्मनी के सैनिकों ने इनको धो दिया, बहुत बुरे तरीके से मारा, और भागते भागते इधर को पहुंच गए। इधर जाके पूरा उत्तरी ध्रुव है जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो इससे क्या हुआ, जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो तो रह सकता है ना। जैसे हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं, वो -डिग्री टेम्परेचर में भी रह जाते हैं, -20-25 में। अपन जाएंगे चिपक जाएंगे बर्फ़ में, वहीं चिपक जाएंगे, आइस बन जाएगी। तो उनको तो आदत है। तो यहाँ के जो सोल्जर थे ना सोवियत संघ के, उनको तो पता था कि भैया हम रह लेंगे, तो ये उधर की तरफ भागे। हिटलर के सैनिक भी उनके पीछे भागे, तो हिटलर की आधी सेना समाप्त हो गई, सब गल गए, उधर बर्फ़ बन गई। एक तरफ लड़ रहा है और दूसरी तरफ कहाँ है? ईरान, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। और मैंने बताया था कि मैच्योर पीपल कैन नॉट फाइट ऑन डबल फ्रंट। समझदार व्यक्ति एक साथ दो फ्रंट पर नहीं लड़ता है। इसने गलती कर दी, दोनों तरफ दुश्मन, इधर लड़ रहा है और इधर भी लड़ रहा है, बर्बादी का कारण बन गया। इसलिए हिटलर का एंड हुआ। तो इसमें बस आपको ये समझना कि ये कुछ देश हैं वो इसके साथ बाद में जुड़ गए, समझ गए? ठीक है, तो आप बताओ, अगर आपके लिए क्वेश्चन आया एग्जाम में कि जर्मनी किसके साथ था, अमेरिका के या सोवियत संघ के शीत युद्ध के दौरान भी? आप सोचो, जर्मनी की लड़ाई सोवियत संघ से हो रही, क्या उसके साथ जाएगा? कभी कभी नहीं जाएगा, तो अमेरिका का सपोर्ट करेगा। इसलिए पूरे के पूरे लोगों का यूरोपीय संघ है, और यूरोपीय संघ का ही सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका, समझे? ठीक है, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी। अब आप ये बोलेंगे ये कहाँ से आ गए? आप क्वेश्चन तो बोल सकते हो ना कि सर यूरोपीय संगठन तो बन गया, पर ये येलो कलर वाले ये देश कहाँ से आ गए, नए नए कहाँ से आ गए भैया, वही पहले से क्यों नहीं जोड़े? सर ये बात है 1991 की, 1991 की, जब सोवियत संघ टूट गया था ना, उसी के देश हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया एंड स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया। कुछ अलग एक दो पहले से थे, समझे? तो इनको आपको समझना है, ये यूरोपीय संगठन के देश है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है? और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको समझ लो आप लोग।
यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव, ठीक है। एकता मतलब समझ रहे हो, एक साथ मिलजुल कर रहने की, यूनिटी, एकता इसका मतलब। देखो बच्चों 1951 की बात है। 1951 में 6 देश आते हैं, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन्होंने फ्रांस की कैपिटल पेरिस में संधि पर दस्तखत किए, साइन किए, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन। किसका? कोयला और इस्पात, यानी एक दूसरे को कुछ चीज़ें देना है, संसाधन, रिसोर्स वगैरह, ठीक है, अपने यूज के लिए। 1957 मार्च में क्या होता है, इन्हीं 6 देशों ने, 6 देश कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और कोई से बचा है? नहीं बचा, बस इतनी है, ठीक है, बेल्जियम, लग्जम